Good morning, students. As you know, in last class we have discussed about some uh, merits, demerits of departmental undertaking, and we have discussed some of the introduction of statutory corporation. So, in today's class, we are continuing the statutory corporation with its features. So, here are some features of statutory corporation. Statutory corporations are set up under an Act of Parliament and are governed by the provisions of the Act. The Act defines the objects, powers, and privileges of statutory corporation. As we discussed in the introduction part, the statutory corporation is governed by the Special Act of Parliament, and the Act defines the working area, powers, scope, privileges of statutory corporation. For example, Reserve Bank of India is organized by the Special Act of Parliament. This Act defines the RBI powers, privileges and scope. Second, this type of organization is wholly owned by the state. The government has the ultimate financial responsibility and has the power to appropriate its profit. Basically, वैसे तो इंडिपेंडेंट है, बट एक जो गवर्निंग बॉडी होगी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, उसमें गवर्नमेंट का कुछ हिस्सा रहेगा ही रहेगा। कुछ ऑफिशियल्स होंगे जिन्हें गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, और जो फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसके लिए जो भी प्रॉफिट होगा उसमें आप गवर्नमेंट को कॉपरेट करने के लिए काम करेंगे। एट द सेम टाइम द स्टेट ऑल्सो हैज़ टू बियर द लॉसेस इफ एनी, कि प्रॉफिट में जिस तरह से आप गवर्नमेंट को कॉपरेट करेंगे अपने प्रॉफिट से, वैसे ही अगर आपको कोई लॉस होता है तो गवर्नमेंट भी आपको कॉपरेट करेगी। थर्ड, a statutory corporation is a body corporate and can sue and be sued but enter into an agreement and acquire property in its own name. As we discussed, it is an independent and legal entity like a corporate, so it can purchase the property by its own name. It can be sued by the outsiders by their own name. कि सीधा गवर्नमेंट का नाम नहीं आएगा, सीधा इसी कॉरपोरेशन का नाम आएगा। This type of enterprise is usually independently financed. It obtains funds by borrowings from the government or from public through revenue derived from sale of goods and services. It has the authority to use its revenue. सबसे बड़ी बात ध्यान से समझना, these type of organization, statutory corporation is fully independent with finance. कि अगर फंड्स जनरेट करने हैं तो by way of borrowings from government or any other financial institution. Second, providing goods and services to the public, and सेल करेंगे तो उसके बदले जो फंड्स होंगे वो भी ये खुद के लिए यूज़ कर सकते हैं। A statutory corporation is not subject to the same accounting and audit procedure applicable to government department. सबसे बड़ी बात कि इनकी ऑडिट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के प्रोसीजर से नहीं होगी। इट इज़ ऑल्सो नॉट कंसर्न विद द सेंट्रल बजट ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा, गवर्नमेंट के बजट से भी रिलेटेड नहीं होगी। जैसे कि हमने पढ़ा था कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग मिनिस्ट्री के अंडर में काम करेगी, जैसा कि हमने पढ़ा और समझा, और हमने ये भी समझा कि मिनिस्ट्री सारे काम करेगी, दैट मीन्स बजट के अकॉर्डिंग काम होता है डिपार्टमेंट्स में, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट बजट से आपका डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं होगा। Next, the employees of these enterprises are not government or civil servant and are not governed by government rules and regulations. इस सीधी सी एक बात और कही इन्होंने कि जो एम्प्लॉई होंगे इनके एंटरप्राइजेस के, वो गवर्नमेंट और सिविल सर्वेंट्स नहीं होंगे, एंड आर नॉट गवर्न बाय गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, और गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन से भी गवर्न नहीं होंगे। The conditions of service employees are governed by the provision of the act itself. जैसा कि हमने पढ़ा कि सब कुछ एक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा। जो काम है, जो आपने डिसाइड किया है, जो करना है, पावर्स है, स्कोप है, ये सब हमारा एक्ट के अकॉर्डिंग काम करेगा। अपॉइंटमेंट, रिक्रूटमेंट, जो भी चल रहा है, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ जो होंगे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे, ठीक है। At the times
some officers are taken from government department on deputation to head these organization. Deputation means कि आप किसी डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, कहीं काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब आपको दूसरे डिपार्टमेंट में फर्दर फंक्शनिंग के लिए ट्रांसफ़र किया जा रहा है, इसी को हम कहते हैं डेपुटेशन। तो इन तरह के स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस को हेड करने के लिए गवर्नमेंट अपने कुछ ऑफिसर्स को डेपुटेशन पर भेज देती है। बेसिकली हमें ये समझना है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। देखा जाए तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट की यूनिट है, तो गवर्नमेंट का इतना इंटरफेयर तो रहता ही रहता है। इज़ इट क्लियर? सो नाउ वी आर स्टार्टिंग सम मेरिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। Here are some merits. First, they enjoy independence in their functioning and a high degree of operational flexibility. They are free from undesirable government regulation and control. कि सबसे बड़ी लिमिटेशन थी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की कि वो इंडिपेंडेंट नहीं थे, अपने लेवल पर डिसीजन नहीं ले सकते थे। जो भी काम करना है अप्रूवल लो मिनिस्ट्री से, एक्सपेंड करना है, डिसीजंस लेने मिनिस्ट्री करेगी फाइनल। यहाँ आपको पावर मिली तो आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि अगर ये नहीं आया तो हम ये काम किसी और से भी करवा सकते हैं, बट वहाँ प्योर ब्यूरोक्रेसी है, वहाँ आप अपना काम किसी और को नहीं दे सकते। नेक्स्ट, सिंस द फंड्स ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट कम फ्रॉम द सेंट्रल बजट, the government generally doesn't interfere in their financial matter including their income and receipt. अब क्योंकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की तरह ये है नहीं, आप लोग बिल्कुल फ्री हैं, तो आपके जनरेशन ऑफ रेवेन्यू जो भी काम होगा या रेवेन्यू जनरेट करने का, यूज़ करने का, इनकम का, उसमें गवर्नमेंट बजट का कोई लेना देना नहीं है। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट आपको फाइनेंस दे या नहीं दे बजट के थ्रू, आप अपना सेल्फ रिलायंस मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, सिंस दे आर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन दे फ्रेम देयर ओन पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स विद इन द पावर्स असाइंड टू देम बाय द, क्योंकि ये ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो ये अपनी पॉलिसी बनाती है, अपने प्रोसीजर बनाती है, अपने रूल्स बनाती है अपने एम्प्लॉय से काम करवाने के, ठीक है। द एक्ट में हाउएवर प्रोवाइडेड फ्यू इश्यूज मैटर विच रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ द पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, क्योंकि एक तरह से ये भी गवर्नमेंट का हिस्सा है तो आपको पर्टिकुलर मिनिस्ट्री की रिक्वायरमेंट, अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होगी अगर कोई इशू हो जाता है तो। नेक्स्ट, a statutory corporation is a valuable instrument for economic development. It has the power of the government combined with initiative of private enterprises. कि एक वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट है और थोड़ा इंडिपेंडेंस ही है तो ये अपने हिसाब से फंक्शनिंग वगैरह कर सकता है, ठीक है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें ये प्राइवेट एंटरप्राइजेस के साथ मिलकर काम करता है। नाउ सम लिमिटेशंस ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं कुछ लिमिटेशंस की। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सफर सेवरल लिमिटेशंस विच आर एज कि कुछ लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं जो कि नीचे दी गई है। इन रियलिटी अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन डजंट एंजॉय एज मच ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एज स्टेटेड अबव। ऑल एक्शंस आर सब्जेक्ट टू मैनी रूल्स एंड रेगुलेशंस की हमने बात की कि जैसे कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में प्योर ब्यूरोक्रेसी थी, वहाँ ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, बट हमने मेरिट्स में पढ़ा कि यस देयर इज़ ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी सो दैट द वर्क कैन बी कंप्लीट स्मूथली। बट रियलिटी में देखा जाए तो आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं मिलती कि आप किसी भी तरीके से अपने ऑपरेशंस को मैनेज कर सकें, ठीक है। दैट मीन्स हियर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस
विच हैव टू बी फॉलोड बाय यू, कि आप अपने हिसाब से काम नहीं करेंगे, उसके लिए आपको सम रूल्स और रेगुलेशंस जो बने हुए एक्ट में वो आपको फुलफिल करने ही करने होंगे। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हैज ऑलवेज बीन देयर इन मेजर डिसीजंस और वेयर ह्यूज फंड्स आर इन्वॉल्व। हमने पढ़ा इट्स अ पार्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर, तो गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहने को इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्री का वहाँ इंटरफेयर ज़रूर होगा जहाँ बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे, ह्यूज फंड्स इन्वॉल्व होंगे, आपकी इनकम ज़्यादा होगी, वहाँ गवर्नमेंट आपके काम में इंटरफेयर करती ही करती। नेक्स्ट, वेयर देयर इज़ डीलिंग विद पब्लिक रैम्पेंट करप्शन एग्जिस्ट, और सीधी सी बात है जहाँ पब्लिक से डील करना होता है, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन को इंडिपेंडेंट है लेकिन ऑफिसर्स को हमने पावर दे रखी है, तो सीधी सी बात है करप्शन तो होना ही होना है, और जितना ज़्यादा करप्शन होगा उतना ही वर्किंग हमारी स्लो होगी, उतनी ही वर्किंग में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएगी। एंड द लास्ट इज द गवर्नमेंट हैज़ अ प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग एडवाइजर्स टू द कॉरपोरेशन बोर्ड। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन बिल्कुल फ्री नहीं होता है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ जो गवर्नमेंट है वो अपने कुछ ऑफिसर्स को अपॉइंट कर देती है एज अ एडवाइजर बोर्ड। दिस कर्व द फ्रीडम ऑफ द कॉरपोरेशन इन एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अदर डिसीजंस, कि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस को जो भी डिसीजंस लेने हैं, जो भी काम करना है, वो गवर्नमेंट एडवाइजरी कमेटी से या ऑफिसर्स जो है अपॉइंट किया गया है उनके एडवाइस लेकर ही किया जाएगा। दैट मीन्स कि जिस फ्रीडम की हम बात कर रहे थे मेरिट्स में, वो फ्रीडम अब हमारे पास नहीं है। इफ़ देयर इज़ एनी डिसएग्रीमेंट, और सबसे बड़ी बात कि या तो हम एक तरह से उनकी बात मान लें, उनकी ओपिनियन मान लें, अगर स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन और इस एडवाइजरी बोर्ड में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, इफ देयर एनी डिसएग्रीमेंट, और अगर कोई डिसएग्रीमेंट है, द मैटर इज़ रेफर टू द गवर्नमेंट फॉर फाइनल डिसीजन दिस फर्दर डिले इन एक्शन। तो ये जो मैटर है ये गवर्नमेंट को रेफ़र कर दिया जाएगा, और जिससे एक्शंस में डिले भी हो सकता है। इज़ इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, बेसिकली स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन जो है उसके भी अपने कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। So on this regard we can easily differentiate the departmental undertaking and statutory corporation. Departmental undertaking is the purest form of government organization, public sector, and the statutory corporation is somehow different, थोड़ी different है कि थोड़ी सी इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, डिसीजंस इंडिपेंडेंट बुक्स में देखने को मिलती है, रूल्स रेगुलेशंस में, एक्ट में। बेसिकली देखा जाए तो एक्ट जिसने बनाया है पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट भी एक्ट में चेंजेस करके आपको इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकती है। और कुछ डिसएडवांटेज में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हमारी करप्शन का भी चलता है। करप्शन जहाँ होगा वहाँ हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स बियर करनी होगी, लॉसेस जो होंगे वो भी बियर करने होंगे, गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज़ के इंटरफेयर जो होंगे वो भी बियर करने होंगे। बट वी कांट से कि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन इज़ नॉट a valuable organization. Yes, it is a valuable organization. Reason, it deals with the public, it do the activities for the welfare of the public, generates revenue for the public, generates revenue for the government. So basically it helps in economic development of a country. Is it clear, students? So in today's class we have completed the statutory corporation, its features, merits and some demerits. Still, if you have got any doubt related to these topics, you can ask through WhatsApp. Thank you, students.